30। ओके, चलिए। अभी मुझे लास्ट वीक का रिकॉर्डिंग को एडिट करने का टाइम नहीं मिला, तो मैं उसे कर नहीं पाया, बट आज कोशिश करूंगा कर सका। कोई नहीं। चलिए, कौन, प्रभात आप शुरू करेंगे? मैं शुरू करता हूँ। आज ये जो पहला ही वाला जो है ये काफी इम्पोर्टेंट है, तो इस पर थोड़ा विचार करेंगे, बट लेट्स ट्राई टू फिनिश इट टुडे इफ वी कैन। वर्स 35 शेयान साथ में। हाँ, मैं अर्थ बताता जाऊंगा। हाँ। श्रेयान स्वधर्मो विगुणा पर धर्मात् स्व अनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावया। Better to follow one's own dharma even poorly than to follow the dharma of another well. Dying while following one's own dharma is better than following others' dharma because that invites danger. फिर अर्जुन पूछता है कि क्या श्रेयस है। अर्जुन वाचा अत केन प्रयोक्तयम पाप चरित पुरुषा अनिच्छिन्नापि वार्षेणे बलादेव नियोजिता। Compelled by what does a person commit a sin? Asking what is there behind a person when he commits a sin, even without wanting to, even though he or she doesn't want to commit a sin. Oh Krishna, why he does commit a sin? As though driven by force. With some kind of a force is driving him to commit a sin. Shri Bhagavan Uvacha काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनोपहा विद्येनमि हे वरीयण्यम। Kama, this desire, and Krodha, this anger, born of the quality of passion, Rajoguna. Mahashano Mahapapma is gluten and great sinner, is the cause behind committing a sin. No it be the enemy here, Vidyena, no e, Varidinium, no it to be the enemy here. Dumain navirete vahinara, yatha darsho malen cha, yatha alban navrito garbas, tata teden ma avritam. Like fire is covered by smoke, or a mirror is covered by dust, or if fetus is covered by the womb, so too this wisdom is covered by desire. So desire is the root cause of taking your wisdom away due to raga and dosha, which is part of the nature. Avrityam jnanam ten jnanino nityavarina kamarupena kamte dushpurena nalena cha. Wisdom is covered by this desire, relentless, which is the relentless enemy of the wise. O Arjuna, by this insatiable fire, because the fire of the desire never ends. You complete one desire, two more are born. So this is a continuous cycle. Indriyani manobuddhira asya adhisthvanam namuchyate at virmohet yesha jnanamavarti dehinam. Senses, mind, and intellect are said to be its abode. With these, desire causes confusion by covering a person's wisdom. So again, saying that desire is the cause of confusion and driving your wisdom away. So your senses, mind, and intellect are taken away by the desire. Tatmat vidrani yana yadav niyam bharat varsham papam prajahi yenin jnana vijnanam nashanam. Therefore, at first, controlling the senses, O Arjuna, destroy this sinner
which is the desire of which is the destroyer of the wisdom and discrimination. Indrayani parna yahur indre ebhe param mana manasastu para buddhira yo buddhi paratastu sa. Then they say senses are superior because senses are part of the subtle body, so it is better than the physical body, and the mind is superior to the senses, and the intellect is superior to the mind, but Atma is superior to the intellect. So Atma is the ultimate, in terms of the hierarchy, is superior to everyone. Evam buddhi param buddhva sanstabhyat mana atmana jahi shatrum mahabhao kamurupam durasadam. Thus, knowing that which is superior to the intellect, studying yourself with the self, O Arjuna, destroy the enemy in the form of desire, which is hard to overcome. That's it. कहाँ पे फिनिश किया? 43. Last. नहीं, अब खत्म हो गया ये chapter. That's the last. वंडरफुल. चलिए अभी आप इसका कुछ टिप्पणी भी दीजिए भाई. तो स्वधर्म की बात करिए. हाँ, स्वधर्म की बात की रही है in the sense that, हाँ, go ahead. यानी स्वधर्म का कंसेप्ट बेसिकली वो जानना जरूरी है कि स्वधर्म से मतलब क्या है. Obviously it doesn't refer to what we commonly understand as religion, but duty, maybe duty. Yeah. The way I understand is this is your duty. So it is always better to follow your duty than to follow somebody else's pattern of activities. And I feel the स्वधर्म also मतलब वक्त के साथ साथ स्वधर्म का डेफिनेशन भी थोड़ा चेंज शायद हो जाता है. जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं हमारा स्वधर्म भी मेरे ख्याल से बदलता रहता है. इन द सेंस कि एज ए बच्चा हमारा स्वधर्म शायद कुछ और है, एज ए स्टूडेंट शायद कुछ और है, एज ए गृहस्थ शायद कुछ और है. तो ऐसे ऐसे ग्रोथ होती है. मेरे ख्याल से स्वधर्म इज नॉट फिक्स्ड, इट्स चेंजिंग. So in a particular circumstance, what is the way one should handle the life, वो शायद स्वधर्म है, something like that. कॉन्टेक्स्ट की बात है ना, क्योंकि अर्जुन के बारे में भगवान ये कह रहे हैं कि वी आर इन ए बैटल फील्ड. So in the context of the battlefield, what is your duty as a क्षत्रिय? तो क्षत्रिय का स्वधर्म यही है कि भाई वो he has to fight. He has to fight, administer. Yeah. So he's saying while following your own dharma is better than following somebody else's dharma. भले एक उस समय ब्राह्मण बनने की कोशिश ना करे. हाँ, उस समय ये सन्यासी की तरफ जा रहा था ना. So it is better to die following your own dharma, because in the battlefield he could die, right? Than following dharmas of somebody else, that's where he was trying to go by renouncing his real dharma, which is duty to fight. भगवान ने शुरू में भी वो कहा था ना हंसते हुए कि वो पंडित जैसी बातें कर रहा है. उसका थोड़ा मजाक सा भी उड़ाया था. बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, कायरता के वश होके. Something like that he had said. और दूसरा ये शायद डिजायर के ऊपर इस पे काफी ज्यादा वो दिया है. हाँ, वो तो बाद में. नेवर एंडिंग फायर. इच्छाएं वासनाएं जो हैं जितनी इनकी पूर्ति होती है उतना ही और भड़कती हैं. और ऑब्वियसली इन्होंने जो है जो ज्ञान है उसको ढक लेती हैं.
क्योंकि Yeah, wisdom is driven away by क्लाउड the हो power जाती of desire. है, क्लाउडिंग हो जाती है उसकी। Yeah. वो है लेकिन उसके ऊपर पर्दा सा पड़ जाता है। Yep. इन दोनों को एक साथ क्यों कहा है, ये थोड़ा समझने की चीज है। आई डोंट नो। नहीं, अर्जुन पूछ रहा है ना 36 में, वो पूछ रहा है ना, अनकेन प्रयुक्त पापम चरिति पुरुषा, what is that compels a person to commit a sin, papam, even though anichannapi varshineya, even though he doesn't want to commit a sin, but he's driven by force, some kind of a force. That is what he's asking. With 37 में भगवान ने जवाब दिया ना, कामेश क्रोधेश, this desire, this anger, born out of a quality of passion, rajoguna, samadbhava, mahashano mahapapma. It is the great cause of the committing a sin. Know it within mehi varidium. Know it that this is your enemy. ये 37 में है। 38, 39 में भी वही बहुत डिटेल में जा रहे हैं भगवान। Like the धूमे ना व्रियते वही नरा, like fire is covered by smoke, or a mirror is covered by dust, or a fetus is covered by womb. So is the desire covers the wisdom. ज्ञान को ढक लेता है बेसिकली। And because it is under the control of desire, it doesn't have the ability to discern what is right, what is not right in a context of any situation. In this case, Arjuna is in the battlefield and wanting to leave the battlefield and become sannyasi. तो एक सवाल ये भी थोड़ा सा और सोचने वाली बात है, जब वो कहते हैं डिजायर के वश में आके इंसान पाप कर्म करता है या सिन कमिट करता है, जिस चीज को वो सिन कह रहे हैं उसकी बुद्धि कहती है कि इसको करो, और उसके रेफरेंस में वो ठीक है। तो ये डेफिनेशन ऑफ सिन क्या है, मतलब क्या, व्हाई इज इट सिन? They are doing something what their mind tells them to do it. Maybe they're thinking that's the right thing to do. But why are we calling it sin, basically? Because it doesn't fit in the context, doesn't fit the his or her duty, right? So I think papa is considered loosely here. If you are not performing your duties to fulfill your what do you call the, जो तुम्हारा धर्म से मतलब ये है कि ड्यूटी जो तुम्हें जो है करनी चाहिए वो तुमने किया नहीं, दैट्स व्हाई इट इज एक्ट ऑफ अधर्म। पाप और पुण्य की एक और भी ये कही जाती है कि एनी एक्शन विच इज पुशिंग यू टुवर्ड्स सतोगुण, उसको आप पुण्य कह सकते हैं, और एनी एक्शन विच इज पुशिंग यू टुवर्ड्स तमोगुण, उसको पाप कह सकते हैं। तो रेफरेंस की बात होगी ना। आई थिंक आई वांट टू एक्सपैंड इट फर्दर। रावण ने जो कुछ किया अपनी बुद्धि से, उसने सोचा ये मुझे करना चाहिए, और हम अपने रेफरेंस में कह रहे हैं उसने पाप किया, वो अपने रेफरेंस में कह रहा है मैंने ठीक किया। तो इसको कैसे कौन डिफाइन करता है कि ये सही है या गलत है, या क्या उसका लॉजिक है? व्हाई इज इट सिन एंड व्हाई इज वो है नॉट ना कि अननेसेसरी हार्म, जो हम लोगों ने पहले भी इस पे डिस्कस किया है कि पापा इज रिलेटेड टू पापा एक्शन इज रिलेटेड टू causing somebody unnecessarily harm. जैसे जो सर्जन है, surgeon will have to open the body to do the surgery. So there is some harm, but that is a necessary harm. And the punya karma is opposite. You are helping people,
through your actions, through your mind. और जी आप कुछ बोले? मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। आ रही है। दिवाकर आपकी आवश्यकता है भाई। नहीं, और बस सही है, लोगों के कमेंट्स अच्छे हैं। आप लोगों ने कहा, हाँ वाकई डिफिकल्ट है वैसे डिफाइन करना व्हाट इज पुण्य। कुछ सोशल एक्सेप्टेंस है तो आजकल वो भी जनरली करते हैं एक्सप्लेन व्हाट इज सोशली एक्सेप्टेबल, व्हाट इज नॉट। हर्ष जी, इस रेफरेंस में शायद वो नहीं होगा। स्वधर्म एंड परधर्म नो, ये काफी कंफ्यूजिंग है, बहुत कंफ्यूज कर रहा है। अर्जुन बैटलफील्ड में है, क्षत्रिय है, पर कुछ ऐसे समझ भी आ सकते हैं कि उसको सन्यासी भी उसका स्वधर्म बन सकता है। जरूरी नहीं है कि वो मारे ही, दूसरे को मार काट करके ही प्रॉब्लम सॉल्व करे। देयर कुड बी सम टाइम इवन सन्यासी एक्शन आल्सो, सन्यासी टाइप के एक्शंस जो हैं वो भी स्वधर्म बन सकते हैं। तो ये स्वधर्म एंड परधर्म बहुत कंफ्यूजिंग है, मतलब इट इज ऑल ओनली योर बुद्धि उस समय क्या डिसाइड कर रही है, वही बोलेगी कि ये स्वधर्म है, ये परधर्म है, ये करो या मत करो। चलिए, वाल्मीकि जी का एग्जाम्पल भी आ जाता है। वाल्मीकि जी तो एक टाइम उनका धर्म जो है वो चोरी करना, डकैती करना था, क्योंकि उस समय अपने परिवार को पाल रहे थे। और उसके बाद उन्होंने रामायण जैसे ग्रंथ की रचना कर डाली। चलिए परिवार का क्या हुआ? मैं थोड़ा सा आपको कुछ पहले का रिमाइंड करा देता हूँ, फिर उसके बाद में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आई थिंक वो भी जरूरी है। तो वैसे तो एक श्लोक में इसमें भी कहा गया है कि भाई इंद्रियों से आगे मन है, और मन से आगे बुद्धि, और बुद्धि से आगे आत्मा। और हम लोगों ने ये डिस्कस भी किया था एक बार कि बुद्धि वैसे तो मन से आगे है, मगर ये बहुत कॉमन देखा गया है कि जब मन किसी चीज के पीछे भाग पड़ता है तो वो बुद्धि को अपना असिस्टेंट बना लेता है। जो उसका मास्टर होनी चाहिए थी, जो उसका एक गाइड होना चाहिए थी, उसकी जगह वो उसका असिस्टेंट बन जाती है। और वो फिर अपने आप को जस्टिफाई करता है उस बुद्धि को लेकर, मतलब उस बुद्धि को लेकर वो अपने डिजायर्स की एक्शन को जस्टिफाई करना शुरू हो जाता है। तो वो बुद्धि का जो काम है, वो रोल उसका खत्म हो जाता है। अब रावण को ये तो मालूम है कि भाई किसी की पर स्त्री को अपहरण करना गलत है, मगर वहां आके वो बुद्धि को नीचे करके और अपने मन से और उससे जस्टिफाई करता है कि मैंने क्यों किया और मैं तो ठीक था। तो जब ऐसे, और ये नॉर्मल है, ये आप कॉमनली देखते हैं कि हर आदमी अपनी जो काम करता है तो फिर उसको जस्टिफाई करता है। बट अगर उस काम को करने के पीछे जो बेसिक फंडामेंटल ट्रुथ है उसका, अगर वो उसको अपनी बुद्धि से याद रखे, जैसे मान लीजिए किसी को हर्ट करना, ये फंडामेंटल ट्रुथ है कि भाई ये गलत है। बट हर्ट करने के बाद में बहुत सारे व्यक्ति हैं जिसको जस्टिफाई करते हैं कि मैंने ऐसा क्यों कहा। तो वो जस्टिफिकेशन जब है तो वो वाला जस्टिफिकेशन, जो बुद्धि का जो रोल था कि भाई वो हर्ट करना गलत है, वो रोल खत्म हो गया उसका। उसको उन्होंने डिनाई कर दिया कि भाई ये गलत है, और अभी तुम मेरे मन के हिसाब से मुझे सपोर्ट करो। मैं एक कहावत में बोला था करता हूँ कभी कभी कि एबिलिटी टू डू वॉट एवर यू वॉन्ट is not necessarily freedom. It can be a total slavery of your mind. ठीक है ना? मगर
बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो एबिलिटी टू डू वट एवर यू वांट, इसी को फ्रीडम समझते हैं और उसको जस्टिफाई करते हैं, ठीक है ना। सो 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 एक 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 जो एक प्रोसेस है ये माइंड का, जो उस प्रोसेस को तो हमें एक्सेप्ट करना होगा कि ये हम करते हैं। जहां तक रही बात कि भाई क्या सत्य है और क्या असत्य है, क्या पाप है और क्या पुण्य है, तो उसमें एक बेसिक फंडामेंटल तो हम सबको मालूम ही है। वो मालूम क्यों है? क्योंकि हम ऐसा चाहते हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरे से कोई भी आदमी मेरे किसी वस्तु को चुरा के ले जाए या मेरे को रॉब कर ले या मुझे हर्ट करे या मुझे धोखा दे या मुझे झूठ बोले। मैं ये नहीं चाहता, कोई भी नहीं चाहता। तो फंडामेंटली मुझे मालूम है कि ये सब काम करने गलत है, मगर वही काम जब मैं रिवर्स में करता हूँ तो फिर मैं उसको जस्टिफाई करता हूँ, फिर मैं बुद्धि को अपना ले आता हूँ अपने गुलाम बना के और जस्टिफाई करना शुरू हो जाता हूँ। तो ये जो एक कंफ्यूजन ऑफ द माइंड है, जो इसको हमें क्लियरली समझना होगा कि भाई ये कंफ्यूजन जो है इस कारण से हो रहा है। उसका कारण क्या है? कारण है डिजायर। कारण डिजायर। सिर्फ यही है, यप। क्योंकि डिजायर जब स्ट्रांग हो जाती है, मन जब उसके पीछे इतना दौड़ पड़ता है, तो वो फिर बुद्धि को अपने साथ घसीट के ले जाता है, बुद्धि का रोल खत्म कर देता है। तो एक तो ये जो प्रोसेस है, जो मन का जो एक कंफ्यूजिंग प्रोसेस है, इसको हमें समझना चाहिए और एक्सेप्ट करना चाहिए कि ऐसे होता है, ये नेचुरल है। हम देखते हैं, ये करते हैं, हम भी खुद भी करते हैं और हमारे आसपास भी होता है। तो बहुत सारे लोग ये शास्त्रों की बात में भी और पुरानी बातों को लेके भी कहते हैं कि भाई ये बात गलत है कि ठीक है, और उसको जस्टिफाई करना शुरू हो जाते हैं, चाहे गलत कह के या चाहे ठीक कह के। बट फंडामेंटल ट्रुथ कभी चेंज नहीं हो सकता। तो या एक तो ये प्रोसेस को हमें समझना चाहिए। अब आप ये आपके अपने ऊपर है कि आप किस वक्त किस चीज को फंडामेंटल ट्रुथ को कहाँ तक ले जाते हैं। हो सकता है कि कोई आदमी रावण के एक्शन को जस्टिफाई कर सकता हो सकता है कि दूसरा ना कर सकता। बट ये भी अगर आप कहते हैं ना हर्ष जी की उसकी बहन की नाक काट दी थी, ऐसा भाई उसका धर्म था कि अपनी जो बहन की इंसल्ट हुई है उसके लिए कुछ करे। तो उसने उसने सीता जी को उठा लिया कि तुमने मेरी बहन को कैसे ऐसे किया। सीता जो ने भी काटी थी ना, संवाद हुआ, आखिर जो भी आखिर आखिर सीता ने काटी थी ना उसकी नाक। है नाक तो सीता ने ही काटी थी। नहीं उनके जो देवर थे उन्होंने उन्होंने काटी थी ना। तो उन्होंने नाक उसको काटी। लड़ना था ना जाके, सीता को उठाने का क्या मतलब था? हम्म, तो वो फंडामेंटली तो गलत है ना वो। हम्म, देखो ना, उसके जो पीछे जो फंडामेंटल है वो आपको, अगर आप बुद्धि को उसका रोल देंगे, उसकी जगह देंगे, तो बुद्धि बोलेगी भी ये गलत है। हम्म, सीता ने तो नहीं काटी थी ना नाक। अगर लक्ष्मण ने काटी थी तो जाओ लक्ष्मण से लड़ो, लक्ष्मण से पकड़ा करो। है ना। तो एनीवे मतलब हम उधर नहीं जाएंगे क्योंकि वो जस्टिफिकेशन में चले जाते हैं। बट आई जस्ट वांटेड टू मेक ए पॉइंट कि भाई जो बुद्धि है उसका इस्तेमाल मन के इच्छाओं को जस्टिफाई करने के लिए जब हम करना शुरू हो जाते हैं, तो हम डेफिनेटली गलत रास्ते पे जा रहे हैं। क्योंकि मन जो है उसको ये नहीं पता कि ठीक क्या है और गलत क्या है। ठीक और गलत का जो डिसीजन है, जो उसका एनालिसिस है, जो उसकी जो बात है, वो बुद्धि करती है। तो मन का तो सिर्फ काम है भाई जाके अटैच हो जाओ किसी चीज के साथ और उसके पीछे दौड़ो। ये नहीं उसे पता कि भाई इसके पीछे दौड़ना ठीक है या गलत। गलत। तो वो तो हो सकता है कि वो किसी अच्छी चीज के पीछे अटैच हो जाए। मान लीजिए कि मन जो है वो आपका इस चीज में अटैच हो जाता है कि जितने अनाथ बच्चे हैं उनको मैं पढ़ाई लिखाई उसकी कराऊंगा। अटैच हो गया, सात्विक अटैचमेंट है ये। अब उसके लिए वो बुद्धि का इस्तेमाल कर रहा है कि मैं कैसे ये काम कर सकता हूँ। बट दूसरा ये भी कह सकता है कि भाई मैं जितने भी यहाँ पे अमीर लोग हैं उनके घरों में चोरी करूंगा, वहां अटैच हो गया और बुद्धि का इस्तेमाल कर रहा है कि भाई कैसे प्लान करूं उसको चोरी करने के।
तो समझ रहे ना बात। तो जो भी मन जब बुद्धि को अपने अधीन कर लेता है हम्म, तो नॉर्मल है ये कि भाई वो गलत रास्ते पे जाएगा, चांसेस उसके बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। हम्म, तो इसलिए हम लोग एक ये जो प्रोसेस है मन का, इसको हमें समझ लेना चाहिए कि हम कई बार हम भी करते हैं, अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, जबकि हमें पता है अंदर से कि वो गलत किया था, हम्म, तो करते हैं, बताएंगे। सो एक तो चीज ये थी। दूसरी चीज मैं स्वधर्म के बारे में कुछ कुछ कहना चाहूंगा। हाँ, वही मैं कहने वाला था कि हम लोग ने ये पहले चैप्टर में डिस्कस किया था। अच्छा, अभी स्वधर्म जो है ना, ये आप ये सबकी बात ठीक है कि स्वधर्म जो है इसकी एक परिभाषा वो बदलती है। मतलब मैंने जैसे बोला, वो परिभाषा बदलने के पीछे कारण क्या है, तो हमें लेट से, वैसे तो मैं इसको कई सारी लेवल्स में कैटेगराइज कर सकता हूँ, बट लेट्स से कि हम उसको 3 लेवल में कैटेगराइज करते हैं फॉर आवर डिस्कशन एट दिस। तो पहला लेवल जो है वो आपका है जो सोसाइटी के अंदर है, जो जहाँ आप पैदा हुए। तो उसमें आपका शारीरिक धर्म, उसमें आपका जो कम्युनिटी के लिए जो धर्म, उसको हिंदी में क्या बोलना चाहिए, लोक, है, जो आपके आसपास का जो परिवार है, जो आपका सोसाइटी है, उसके लिए परिवेश, जो धर्म, सामाजिक, सामाजिक धर्म हम्म, है, उसको हम ड्यूटी भी बोलते हैं। उसको उसी को हम बोलते हैं ना कि भाई आपका धर्म है, ये समाज में ऐसे करना चाहिए, सोशल नॉर्म्स जैसे कहते हैं। सोशल नॉर्म्स ऐसे। तो वो एक तो वहां पे आ जाता है। बट दूसरा धर्म जो है उससे वो जाता है पूरा व्यक्तिगत। आपका जो पर्सनल, जो आपकी जो पर्सनैलिटी है, जो आपका इनर, जिस जगह पर आप हैं, जहां आपने इस जन्म को लिया है, जिस चित्त और जिन वासनाओं के साथ आप यहाँ पैदा हुए हैं, जो कॉम्बिनेशन आपका रजो सतो और तमो गुण का है, जिसके साथ आप पैदा हुए, जिसमें से जो जिस कॉम्बिनेशन के बाद जो आपकी जो इनर पर्सनैलिटी बनती है, नॉट नॉट ए विजिबल पर्सनैलिटी हाथी के दांत वाली, बट जो आपकी इनर पर्सनैलिटी है, जो आपको अलाइव करती है, जो आपका पैशन बनाती है, जो आपको ये बोलती है कि मुझे इस तरह से जीवन करना चाहता हूं मैं। वो अब यहाँ थोड़ा सा आपको ये डिफरेंशिएट करना होगा कि मन की इच्छा से नहीं, बल्कि अंदर के पैशन से। तो मन की इच्छा तो हो सकती है कि भाई मैं करोड़पति होना चाहता हूँ या व्हाटएवर, बट जो अंदर का पैशन है वो कुछ और होता है। तो इस चीज को खासकर हम लोग इंडिया के अंदर हमारी कुछ इस तरह से सोसाइटी रही है कि हम उस चीज को कभी भी हमने उसको एनकरेज भी नहीं किया और रादर उसको सप्रेस करते रहे कि भाई जो जो सोसाइटी के जो सामाजिक धर्म जो थे हमारे, उनको हमने स्वधर्म बना दिया। मगर जो व्यक्तिगत धर्म था उसका, जिसमें उसके अपने गुणों को हमें जागृत करके और उसको एनकरेज करना था, उसको हमने दबा दिया। बट इस लेवल के ऊपर भी आपका एक धर्म होता है। अब जैसे मेरा, मान लीजिए कि मेरा स्वधर्म जो है वो मेरी गुणों के हिसाब से इस तरह से है कि भाई मैं किसी को कुछ चीज सिखाऊं। और मान लीजिए, मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा ही है, बट मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, है। तो मान लीजिए कि राम मनोहर जी का धर्म जो है वो ये है कि मैं किसी चीज को एक्शन से करके बताऊं, जो भी अच्छी बातें हैं उसको मैं कर्म करके बताऊं और उसको एनकरेज करूं कि कर्म कर। अब ये जो पैशन है, जो अब मैं सबके लिए कुछ ना कुछ कह सकता हूं, बट जस्ट टू गिव एन एग्जांपल, तो ये जो पैशन है, अब ये मेरा स्वधर्म है कि मैं एक शिक्षक बनूं, और ये स्वधर्म है राम मनोहर जी का कि वो एक कर्मयोगी बने। उस लेवल पे आ गए ना अब हम। अभी ये हम सोसाइटी की या सामाजिक धर्म की बात नहीं कर रहे, अब हम व्यक्तिगत धर्म की बात कर रहे हैं। अब हम उन गुणों की बात कर रहे हैं जिन गुणों के साथ हम पैदा हुए, जो गुण हम लेके आए हैं। ठीक है।
तो अब इस लेवल के ऊपर जो धर्म होता है हम उसको भी स्वधर्म ही बोलते हैं। जैसे अर्जुन के केस में बिकॉज ही क्षत्रिय, अर्जुन के केस में उसका जो है सामाजिक दायित्व भी राजा का है और उसका जो स्वधर्म है वो क्षत्रिय का है, वो भी क्षत्रिय है। तो उसके लिए ये दोनों जो है वो एक इंटीग्रेशन है, उसका हार्मनी है। बहुत सारे हम लोग ऐसे होते हैं जीवन में, हमने देखा है कि हमारा सामाजिक धर्म जो है वो हमारी जो स्वधर्म है, जो उस लेवल का जो धर्म है, गुणों वाला लेवल का, उससे कई बार अलग हो जाता है। और ऐसे समय के अंदर आपको देखेंगे कि एक व्यक्ति चाहे जितना भी सक्सेसफुल क्यों ना हो जाए, वो अंदर से एट पीस नहीं होता, क्योंकि उसके कॉन्फ्लिक्ट आ गया ना उसका। क्योंकि सामाजिक धर्म जो है, जो उसको समाज में रहने के लिए जो उसको बताया गया कि ये तेरी ड्यूटी है, ये तुझे करना है, और वो कर रहा है, उसके कारण से वो ऐसे काम कर रहा है जो उसके अपने इनर पैशन के अगेंस्ट है। तो ये इस लेवल के ऊपर जब आप वो स्वधर्म की बात करते हैं, जब आप व्यक्तिगत स्वधर्म जो आपके गुणों से रिलेटेड है, ना कि आपके जन्म से। देखिए ना, सोसाइटी ने तो जन्म से बता दिया स्वधर्म कि भाई तू पंडित के घर पैदा हुआ है तो तू तो मंत्र पढ़ेगा, पूजा कराएगा। ये तो सामाजिक धर्म बना दिया उन्होंने। बट वो जो व्यक्ति पैदा हुआ था वो तो क्षत्रिय था, मतलब गुणों के हिसाब से। वो तो कर्म में विश्वास रखता था, वो तो विश्वास रखता था कि भाई मैं जाके जो 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 दुखी हैं, पीड़ित हैं, उनकी मैं मदद करूं, कर्म करूं उनके लिए। शायद इसीलिए हॉबीज और शौक की इम्पोर्टेंस है लाइफ में। इसलिए आते हैं हॉबीज एंड शौक, इसीलिए आ जाते हैं कई बार। बट तो जो सामाजिक स्वधर्म बनाया उसका, वो उसके जो व्यक्तिगत स्वधर्म है उसका, उससे कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। तो भगवान कहते हैं जब तुम ऐसा काम करोगे वो तुम्हारे लिए नेगेटिव है। जब वो कॉन्फ्लिक्ट आना शुरू हो जाएगा, दैट कॉन्फ्लिक्ट इज नेगेटिव फॉर यू, इट इज फॉर नेगेटिव फॉर एवरीवन। हम लोगों की अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि पिछले 1000 सालों से गुलामी रही, तो जो हमारा जो व्यक्तिगत स्वधर्म था, जो गुणों के ऊपर आधारित था, उसको सप्रेस कर दिया गया समाज के और सिचुएशन के हिसाब से। तो हर व्यक्ति के धर्म में जो था वो सामाजिक धर्म जो था वो प्रदान हो गया। बट अगर हम स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे जा रहे हैं तो हमें ये समझना होगा कि हमारा स्वधर्म जो है वो कहाँ है, क्या है। एंड वो धर्म जो है वो बेस होगा आपके गुणों से, आपके जो आपकी इनर, जो चित्त के अंदर जो आपका जो कॉम्बिनेशन, जो कंस्ट्रक्शन है आपकी, जो आपकी वासनाओं का जो एक जो उसका जो स्पेक्ट्रम है। तो उस स्वधर्म के लिए जब हम बात करते हैं, और इसलिए मैं लास्ट टाइम, उससे पिछली बार भी मकरंद ने जब मास्लो की बात की, तो मैंने कहा था मास्लो के बारे में बताना होगा आपको। जब हम उस धर्म के बारे में बात करते हैं, उस धर्म को परिपूर्ण करने के लिए या उस धर्म को फॉलो करने के लिए जब हम पूरी तरह से लग जाते हैं और हमारे को समाज वाला उसमें एनकरेज करता है, तो हम उसमें उसको, उस वर्ड को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं एक्चुअलाइजेशन। You are doing what is your passion and you feel satisfied because you're doing what is your passion. और जो पैशन जो करते हैं ना लोग, आप देख लें उनको, वो अपने धन मन को छोड़ देते हैं, कहीं कुटिया में भी रह लेंगे वो, बट दे विल बी वेरी हैप्पी। वो क्योंकि उनका जो स्वधर्म है उस लेवल के ऊपर वो उसको फॉलो कर पाते हैं। सो स्वधर्म को सिर्फ आपकी ड्यूटीज के साथ में रिलेट नहीं करना चाहिए सिर्फ, मतलब वो उस लेवल को हम इग्नोर नहीं कर सकते, निगेट नहीं कर सकते।
जो आपकी सामाजिक कॉन्टेक्स्ट तो हर जो हाँ बोला। क्वेश्चन है, अगर कॉन्टेक्स्ट जैसे ये अभी जो अर्जुन के सिचुएशन के बारे में बात हो रही है, तो वहां पर जो है इफ इसका तो खैर यूनिक केस है, स्वधर्मा रिलेटेड टू हिज इनर चित एंड वासनास बेस्ड गुणास जिसके साथ वो पैदा हुए थे, is integrated with what society wants him to do. तो ये confusion कैसे हो रहा है in other context? So is it देखिए भगवान जो उसको बता रहे हैं वो ना सिर्फ उसके ऊपर वैलिड है, वो सबके लिए वैलिड है, ठीक है ना। उस कॉन्टेक्स्ट में भी अर्जुन तो अभी सवाल कर रहा है ना, इतने सारा ज्ञान जानने की कोशिश कर रहा है, और भगवान उसको बता रहे हैं कि तू ज्ञान तो जान ले, अच्छी बात है, बट जो कर्म करेगा तू वो तुझे स्वधर्म के हिसाब से ही करने चाहिए। तुझे ज्ञान लेने में कोई रुकावट नहीं है, कोई मनाही नहीं है, कोई उसके लिए कोई वो कंडीशन नहीं है कि भाई क्योंकि तेरा क्षत्रिय धर्म है तो इसलिए तू इस ज्ञान को ना ले, ऐसा नहीं है। ज्ञान तो तू सारा ले, बट कर वो जो तेरा स्वधर्म है। क्यों? क्योंकि अगर वो नहीं करेगा तू, वो जो कॉन्फ्लिक्ट है वो तेरे को डाउनवर्ड ले जाएगा। एक आर्टिस्ट जिसको पेंटिंग करने का पैशन है, आप उसको बिठा दीजिए कि भाई आप मैथमेटिक्स में ये काम करिए, वो कॉन्फ्लिक्ट के बेचारा कर तो लेगा। ये तो आजकल हम लोगों में बड़ी, ह्यूमन रेस में बड़ी वो एक एडाप्टेबिलिटी है, हम लोग कर लेते, बट वो जीवन में क्या वो खुश रहेगा? क्यों नहीं रहेगा वो खुश? वो इसीलिए नहीं रहेगा कि जो उसका जो स्वधर्म था, उसका जो क्रिएटिविटी थी उसको एनकरेज ही नहीं किया जा रहा, वो कर ही नहीं पा रहा उसको, क्योंकि सामाजिक दायित्व उसके ऊपर इतने आ गए। तो आप कॉन्टेक्स्ट में भी देखेंगे तो वो वैलिड है, और अगर आप वैसे जनरल उसमें भी देखेंगे तब भी ये वैलिड है। follow the swadharma based on its inner. That's why you will see that some people जो सामाजिक दायित्व को भी पूरा करते हैं, और हम लोग ये कहते हैं कि भाई अगर इफ यू आर डूइंग समथिंग दैट यू लाइक टू डू, you will never work in life. Yeah. All of this is pointing towards the same thing. ये तो खैर अनफॉर्चुनेट पिछले कुछ 100 सालों से हम लोग अपने बच्चों को इस तरह से नहीं करा सके, क्योंकि हम लोगों को सामाजिक दायित्व जो था उसी को हम स्वधर्म समझते रहे। पंडित को मंत्र पढ़ना है यही स्वधर्म समझते रहे, बट वो स्वधर्म एक लेयर है उस स्वधर्म की। सामाजिक दायित्व से कोई भागने वाला नहीं है, और ना ये प्रपोज किया जा रहा है कि आप भागें। अगर आप पेंटर हैं जिसका मैंने अभी जिक्र किया था, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको अपने परिवार के साथ में जो दायित्व है वो छोड़ देना है, वो नहीं छोड़ना है, सामाजिक दायित्व तो करना ही है। तो वो स्वधर्म के लेवल के ऊपर डिपेंड करता है। सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू पॉइंट आउट कि स्वधर्म जो है, एंड टू क्लैरिफाई कि कॉन्टेक्स्ट उसका क्या देखना चाहिए और कैसे होता है, बट भगवान का जो इशारा है वो सामाजिक दायित्व की तरफ नहीं है। So you should always perform your duties based on your inner passion. You should always perform your duties, that is a given. Yeah. ठीक है, सामाजिक दायित्व आपका जो है वो आपको पूरा करना है, ये गिवन है। अब उसको पूरा कैसे करना है? Try to do it with स्वधर्म, with your personal स्वधर्म, जो आपके गुण हैं उनके हिसाब से उनको अलाइन करके उसको अलाइन कीजिए। हाँ जी, बोलूं कुछ? तो तीसरा लेवल क्या था? एक मिनट आपने 2-3 लेवल पे बोला था ना इसको, वो करो। तीसरा भी वही मैं भी कहने वाला हूं, तीसरा है नहीं। तो सोसाइटी बेस्ड, एक पर्सनल, ये चित्तन वासना बेस्ड। तीसरा लेवल जो आप चले जाएंगे तो वो आत्मा लेवल के ऊपर आ जाएगा। तो आत्म लेवल के ऊपर जहां पर आपका
चित्त शुद्धि हो चुकी है, तब आपका स्वधर्म जो है वो क्या है। तो वो स्वधर्म जो है वो तो खैर वो टॉप लेवल है ना, वो तो डेप्थ के ऊपर है ना पूरी। जी हाँ जी। मतलब बहुत अच्छी तरह से आपने स्वधर्म और ये एक्सप्लेन किया। मेरे मन में एक प्रश्न ये है कि डिपेंडिंग ऑन उसकी प्रीवियस वासनाएं जो जिसके बेसिस पे उसकी पर्सनालिटी बनी है, किसी का स्वधर्म थोड़ा निगेटिव भी हो सकता है। यू नो, इट नीड नॉट बी ऑल द पॉजिटिव थिंग्स, देयर मे बी सम नेगेटिव थिंग्स। तो उसके स्वधर्म में वो नेगेटिविटी घुसी हुई है। ओके, नाउ वो अपनी बुद्धि के जैसे टाइम पास हो रहा है, उसने अपनी बुद्धि का यूज करके ये रियलाइज किया है कि ये जो मेरी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है, जो स्वधर्म है, वो निगेटिव है और मुझे वो इम्प्रूव करना है और कंटिन्यूस एफर्ट करता है। तो क्या वो कहलाया जाएगा कि स्वधर्म के विपरीत काम कर रहा है वो? नहीं, और ये बात राम मनोहर जी, आपके सवाल जो है ना बिल्कुल वो अर्जुन वाले होते हैं, मजा आ जाता है। तभी तो वैसे तो नहीं आ गया मैं। मजा आया। भगवान कृष्ण ने इसीलिए अगले 2 श्लोकों के बाद में बोला कि भाई ये जो आवरण है, अभी इसको उस श्लोक पे आ जाते हैं, तो इससे शायद आपके सवाल का जवाब भी मिलेगा। ये जो आवरण है ये इस तरह से है जैसे अग्नि को स्मोक, उसका जो धुआं होता है वो जैसे उसको आवृत कर देती है, या जैसे मिरर के ऊपर जो डस्ट होती है, जो शीशे के ऊपर जो मिट्टी चढ़ी है उससे उसको आवरण होता है, और तीसरा जो गर्भ में बच्चा होता है उससे आवरण। तो ये आवरण क्या है और कैसे है, तो देखिए, सतोगुण प्रधान, जिसका सतोगुण है प्रधान, उसकी अग्नि सिर्फ एक स्मोक से आवृत है। एक छोटी सी फूंक मारेंगे तो अग्नि सामने नजर आ जाएगी। मतलब जो सतोगुण प्रधान वाला है उसके लिए उस अग्नि को जागृत करना बहुत आसान है। रजोगुण प्रधान वो ऐसे है जैसे कि शीशे के ऊपर मिट्टी है और उसमें प्रतिबिंब उसका नजर नहीं आ रहा क्योंकि मिट्टी चढ़ी है, तो उसको उसके लिए एफर्ट करनी पड़ेगी, इसको लाके डस्टर लेके साफ करना होगा, एक एक्शन उसको करना आवश्यक है, जिसके लिए थोड़ा समय और एफर्ट दोनों लगेगा, मगर वो लगने के बाद में वो शीशा साफ हो जाएगा और प्रतिबिंब नजर आएगा। और जो गर्भ में है बच्चा, वो है जैसे तमोगुण वाला प्रधान वाला, उसको 9 महीने लगने वाले हैं, उसको बहुत एफर्ट लगने वाली है। ये दोनों उसके लिए वो ऐसा नहीं है कि फूंक मारो और बच्चा पैदा हो जाए, ऐसा होने वाला नहीं है। तो जो वो तमोगुण से उसको निकलना है उसके लिए समय की भी आवश्यकता है और उसके लिए बहुत एफर्ट की भी आवश्यकता है। उसमें दर्द भी होगा, उसमें सब कुछ होगा, मतलब वो आप समझ रहे हैं, जन्म लेने वाली बात होगी ना। तो जो ये जो जो स्वधर्म है उसकी बेसिस जो है वो आपकी आत्मा से शुरू होती है। आत्मा से चित्त, चित्त के बाद में चित्त की कॉम्बिनेशन के बाद में आपका माइंड सेट जो बनता है, आपकी पर्सनैलिटी, उसके बाद में आपका वो सामाजिक दायित्व वगैरह आ जाता है। तो फ्लो इस तरह से होता है। बट हम जब स्वधर्म की बात कर रहे हैं तो उस फ्लो में अगर वो तामसिक उसमें बैठा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका धर्म तामसिक है, उसका सिर्फ मतलब ये है कि उसका जो 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 उसकी नॉलेज है, जो उसका आत्मा जो उसकी है, वो उस तमस के आवृत है, उससे तमस से इन्फ्लुएंस जो है, इन्फ्लुएंस उसका जो है वो तमस में आ गया है। इट इज नॉट हिज स्वधर्म। अगर उस तामसिक बंदे को भी आप कोई पैशन की बात पूछेंगे तो उसका पैशन नेगेटिव नहीं होगा, उसकी डिजायर नेगेटिव हो सकती है। यू सी डिफरेंस जो है वो पैशन एंड डिजायर में रखना चाहिए।
डिजायर नेगेटिव होने से वो तामसिक भाव में चला गया, बट ये उसका स्वधर्म नहीं है। तो उसके लिए क्या करते हैं हम, उसके लिए इमीडिएटली हम बोलते हैं कि भाई तुम अपने सामाजिक धर्म को पूरा करो। तुम्हारा स्वधर्म जो है वो सामाजिक लेवल के ऊपर इंपॉर्टेंट है। सामाजिक लेवल के ऊपर तुमको चोरी नहीं करनी, तुमको नेगेटिव नहीं करना, मारना नहीं है, ये सब ये करना तुम्हारे लिए आवश्यक है। और तुम्हें अपनी अगर जीविका करनी है तो वो जीविका भी नेगेटिव नहीं करनी है, ठीक है ना। तो उसके लिए हम लोग अभी, क्योंकि अब वो तमस में है ना, उसको तो टाइम लगने वाला है ना, उसको तो पहले सामाजिक दायित्व में से निकलेगा, तब जाके कहीं वो अपने उसमें जाएगा कि भाई मेरा अपना पर्सनल क्या है, मेरी अपनी जो जर्नी है वो कहाँ जाने वाली है। तो जब तक वो उसमें से, गर्भ में से नहीं निकलेगा, जब तक उस तमस में से नहीं निकलेगा, तब तक वो, जब तक वो उसमें से निकल के रजस और सत्व की तरफ नहीं जाएगा, तो उसका वो स्वधर्म का लेवल जो है हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते कि आपकी पर्सनैलिटी के लेवल। हम सिर्फ तब उसको तभी डिफाइन करते हैं कि भाई तुम्हारा सामाजिक है। और आई थिंक इट्स ए लॉजिकल प्रोसेस कि भाई क्योंकि उसका उसका जो मन है, वो जो उसका चित्त है, जो वो उस रजस और सत्व की तरफ इतना नहीं है, तो इसलिए उसको सामाजिक दायित्व जो है वो उसके लिए प्रदान करके उसको कहा जाता है कि भाई तुम ये तुम्हारा जो स्वधर्म है, एज ए फादर, एज ए सन, इसको करो, पूरा करो, करो पॉजिटिव तरीके से करो। करेक्ट। तो उसे अपना स्वधर्म छोड़ करके, जो भी वो स्वधर्म मतलब डिस्टॉर्टेड वन विच इज देयर, उसको छोड़ के उसको एक अच्छा धर्म जो भी पराया पर धर्म है उसको अडॉप्ट करना ही होगा। नहीं, उसको पता ही नहीं कि उसका स्वधर्म क्या है, क्योंकि वो तो अभी गर्भ में है ना। उसको प्रॉब्लम तो उसकी ये है, उसका तो स्वधर्म उसे मालूम ही नहीं है, वो तो सिर्फ मन के उसमें भागा चला जा रहा है। जो जो तामसिक गुण है उसका, वो उसको भगा रहा है, वो उसको फॉलो कर रहा है, उसको उसको उसने बैठ के ये सोचा ही नहीं कि मेरा धर्म है क्या। स्वधर्म की बात तो छोड़िए, उसे तो अपने कर्तव्य का भी मालूम नहीं होगा। तो इसके लिए हम लोग, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि भाई उस लेवल के ऊपर हम वो उसको हम ऐसे नहीं ट्रीट कर सकते कि भाई उसने, जैसे कि एक सात्विक भाव से आपसे सवाल पूछा कि मेरा धर्म क्या है, अगर जैसे ही वो सवाल पूछेगा तो वो तो ऑटोमेटिकली तमस से निकल गया, वो सवाल ही नहीं पूछेगा। अदरवाइज तमस गुण का जो एक एट्रीब्यूट है वो ये है कि तमस के अंदर जो अज्ञान होता है उसको ज्ञान समझता है। तमस के अंदर जो आलस्य होता है वो प्रधान हो जाता है। तो वो आलस्य जो है वो भौतिक या शारीरिक उस पर नहीं, मानसिक आलस्य होता है। तो वो क्वेश्चन नहीं करता है कि जो मैं कर रहा हूँ ठीक है कि गलत। तो तमस के अंदर ये प्रॉब्लम है। तो इसीलिए उसको बोलते हैं कि इसको गर्भ के अंदर जैसे बच्चा है, उसको बहुत टाइम और एफर्ट एंड पेन ये सब लगने वाला है। तो हम सामाजिक धर्म को प्रधान बना करना होगा उसे। हाँ, तब उसके लिए हमें सामाजिक प्रदान करना पड़ता है। होगा एंड देन स्लोली कैन इंप्रूव। एग्जैक्ट। गुड। तो मैं इसीलिए बोल रहा था, आपके सवाल इतने बढ़िया होते हैं, मतलब भगवान कृष्ण ने भी उसी का जवाब दिया है। पूरा श्लोक बना के छोड़ देते हैं आपके सवालों के लिए। ठीक है सर। ठीक है, आई होप सम क्लैरिटी। या आगे क्या था? आगे वही ज्ञान के बारे में बात किया, हम लोग वर्ष 38 तक कर चुके हैं। ठीक है ना। तो वो जो ये जो श्लोक है ना, जिसमें 3 डिफरेंट उन्होंने बताए हैं कि आवरण क्या है, उसको आप इसको समझें गुणों के हिसाब से हो। सात्विक का आवरण, राजसिक का आवरण और तामसिक का आवरण। चलिए फिर आगे देखें। आवृत्यम ज्ञानम एतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कामदे दुष्पुराण नलेन च। इसमें wisdom is covered by this relentless enemy of the wise, which is desire. O Arjuna, by the insatiable fire of the desire, your wisdom is taken away.
ठीक है ना, तो वो मतलब इसी को 39वां और 40वां दोनों के अंदर वही बात है, थोड़ा हाँ। उसको क्लैरिफाई किया उन्होंने। इंद्रियाणि मनः बुद्धि, दिस इज द ड्वेलिंग प्लेस ऑफ डिजायर्स। यहाँ पे वो रिलेटिविटी लिया है ना बिटवीन माइंड, इंटेलेक्ट एंड आत्मा। उससे पहले सेंस, माइंड, इंटेलेक्ट एंड आत्मा। देखिए जो And as you प्योर, go higher and higher, you get away from हाँ बट the influence of desire. देखिए जो प्योर माइंड है, जो प्योरिटी वाला मन है, वो हमेशा आपको सत्व की तरफ ही ले जाता है। उसको उसको उसका बेसिक फंडामेंटल प्रेम है, भाव। जो प्योर माइंड है उसका फंडामेंटल भाव अनकंडीशनल लव है। वो जो अनकंडीशनल लव है उसका जो वो विकार होता है तो वो कंडीशनल लव में कन्वर्ट हो जाता है, और जब वो कंडीशनल लव में भी विकार हो जाता है तो वो सेल्फिशनेस में कन्वर्ट हो जाता है। इससे इससे ये विकार जो है प्योरिटी से इम्प्योरिटी की तरफ जैसे जैसे जाता जाता है वैसे ही वो सेल्फिश, मतलब इस तरह से उसकी प्रगति होती है। प्रगति कह लीजिए या वो उसका पतन कह लीजिए, जो भी मतलब विकार है ये तो, ठीक है ना। अनकंडीशनल से आप कंडीशनल पे जाते हैं और कंडीशनल से सेल्फिश पे जाते हैं। तो जो मन है उसकी जो प्योर फॉर्म है वो तो है आपकी अनकंडीशनल लव, बट क्योंकि वो वहां टिकता नहीं है, भागता है इधर से उधर। तो इसी तरह से बुद्धि जो है उसकी जो प्योरेस्ट फॉर्म है वो एब्सोल्यूट ट्रुथ के लिए है। याद है ना, एक बार हमने बात की थी कि भाई जो जो बुद्धि है, और एंड यू कैन एक्सपीरियंस इट, बुद्धि इज ऑलवेज लुकिंग फॉर द एब्सोल्यूट आंसर, द अल्टीमेट आंसर, जिसको कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो। It is never looking for relative answer. It is saying if it is relative, then there must be something. बुद्धि का नेचर है ये, this is the nature of the बुद्धि। जो अल्टीमेट प्योर नेचर ऑफ द बुद्धि है, it is for absolute truth। बट उसमें विकार आ जाता है, और विकार आने की वजह से वो एब्सोल्यूट ट्रुथ की जगह रिलेटिव को मानती है ट्रुथ। रिलेटिव ट्रुथ के बाद में जब जैसे ही वो रिलेटिव ट्रुथ की तरफ चली जाती है तो जो मन है जो वो भी विकार में आ गया था वो इमीडिएटली बुद्धि को अपने अधीन कर लेता। जब तक बुद्धि रिलेटिव ट्रुथ की तरफ नहीं जाएगी तब तक मन उसको अधीन नहीं कर पाएगा, और जैसे ही वो जाती है तो मन उसको इमीडिएटली अधीन कर लेता है। तो अब जो मन जो है वो तो डिजायर की तरफ भाग रहा है और उसने बुद्धि को अपने अधीन कर लिया। तो यहाँ पर आपके संसार के अंदर ये खेल चल रहा है। तो भगवान उसको बोल रहे कि ये इंद्रियां, ये मन और ये बुद्धि, इनमें ये बैठी हुई हैं डिजायर्स, और ये डिजायर्स, ये जो मन बुद्धि और इंद्रियां, ये इससे तो कोई ज्ञानी भी नहीं छूटता ना, ज्ञानी के पास में भी है। तो वो कहते हैं कि ये ज्ञानी को रोजाना परेशान करती है, और ये परेशान होने का जो उसका वो कहते हैं जो सामने प्रकट होती है वो उनके डिजायर की तरह से प्रकट होती है, काम की तरह से, डिजायर की तरह से। चित्त को जब चित्त में तो याद होगा आपको, हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि चित्त के अंदर जो इम्प्रेशंस हैं वो इम्प्रेशंस तो आपको मालूम नहीं चलते जब तक वो इम्प्रेशन जो है वो मैनिफेस्ट हो जाते हैं, आके भाव डिजायर और थॉट की तरह से जब सामने आते हैं तब मालूम चलते हैं। बोलते ये इंद्रियां, ये मन, ये बुद्धि, इन चीजों के बीच में वो डिजायर घूमती है। So इसका मतलब level of desires है ना, that's why you're moving as intensity goes up of the desire,
you're going down from unconditional love to हाँ, conditional selfish. मतलब you're right, but at the same time just think of it this way, desire can also be positive, सात्विक भी हो सकती है, उसकी strength भी बहुत strong हो सकती है, क्योंकि वो जो सात्विक डिजायर है आपकी, वो आपको ले जाती है कि भाई मैं ये I will find out कि who I am, मेरा रियल नेचर क्या है, जिसके बारे में लोग बात कर रहे हैं, ये भी एक डिजायर है, ये भी एक पैशन है। तो डिजायर सिर्फ नेगेटिव नहीं है, डिजायर तो एक वो लाठी है जिसका सहारा लेकर आपने अपना सफर तय करना है। अब ये बात अलग है कि कभी वो डिजायर जो है वो नेगेटिव की तरफ ले जाएगी, कभी पॉजिटिव की तरफ, तो इसके लिए आपकी बुद्धि का इस्तेमाल करना आवश्यक हो जाता है, बट नॉट कि भाई वो अधीन बुद्धि नहीं, स्वतंत्र बुद्धि। I hope it makes some sense. I hope some clarity comes. I hope Yes. we can bring it to us. हम लोग खुद अपने अंदर में ये जांच कर सकते हैं इसकी कि हाँ ये ऐसे है। नहीं, वही वो 41 में कह रहे हैं ना, now he's saying how to start controlling this desire, starting with senses. क्या है 41 में? तत्व इंद्रियाणी या इंद्रियाणा दो नियम कंट्रोलिंग भरत शर्मा, हाँ, वो अर्जुन पापा पूजा इन्हीं ये ज्ञान विज्ञान नाशनम बुद्धि को भ्रष्ट कर देती है। कंट्रोलिंग योर सेंसेस इज द फर्स्ट थिंग टू डू। तो इसीलिए वो प्रोसेस जो है वो इसीलिए बना है, पहले आप इंद्रियों को करें, सेंसेस को कंट्रोल में करें, उसके बाद में फिर मन को करें, बुद्धि को अपना जो स्थान देना चाहिए वो दें, धीरे धीरे वहां से निकले, देन यू गेट टू द रियल सेल्फ। then after that you go to the third level of स्वधर्म, जो आत्म धर्म जिसको बोलना चाहिए, आत्मा का जो धर्म है। उस आत्मा के धर्म में क्या है? उसमें इक्वानिमिटी है, उसमें अनकंडीशनल लव है, ठीक है नहीं? उसके अंदर तो ये है सारी चीजें, फिर वो स्वधर्म हो जाता है। इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग। मुझे इस बात पे एक याद आ गया, तो आई थिंक ऑल्दो वो डायरेक्टली इसमें नहीं कंट्रीब्यूट करता है बट इनडायरेक्टली करता है, तो आई थिंक आई विल मेंशन इट। हम लोग बोलते हैं वैराग्य, डिटैचमेंट। वैराग्य को ट्रांसलेट करते हैं हम डिटैचमेंट। दैट इज नॉट ए राइट ट्रांसलेशन, सॉरी। Vairagya means without attachment. It does not mean detachment. Unconditional love is without attachment. Detachment takes you away from unconditional love. डिटैचमेंट का हम ऐसे एग्जांपल देते हैं ना कि भाई अगर मेडागास्कर में एक एक्सीडेंट हो गया गाड़ी में किसी की और किसी को चोट लग गई, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो डिटैच्ड हैं उससे, कोई वो नहीं। बट जो अनकंडीशनल लव है उसको फर्क पड़ता है, तो उसमें अटैचमेंट नहीं है बट उसके साथ में अनकंडीशनल लव है। तो जो डिटैचमेंट वाले जो प्रधान है ना, जो कहते हैं वैराग्य का मतलब डिटैचमेंट, वो थोड़ी सी गलती कर रहे हैं, क्योंकि वो जो मन की जो प्योरिटी वाला जो फंडामेंटल स्टेज है, जो उसमें अनकंडीशनल लव वाला जो स्टेज है, वो उसको डिनाई कर रहे हैं। इसलिए मैं डिटैचमेंट को, मतलब वैराग्य को डिटैचमेंट नहीं कहता हूँ, मैं वैराग्य को सिर्फ यही कह सकता हूँ कि भाई ये कंडीशनल लव है। नो
मतलब विदाउट अटैचमेंट बट नॉट डिटैचमेंट, Correct. है ना? तो आई जस्ट वांटेड टू मेंशन इट, क्योंकि हम लोगों ने वो मन की बात की ना, बुद्धि की, कि मन प्योर फॉर्म क्या है उसकी और बुद्धि की प्योर फॉर्म क्या है। तो वो मन की क्योंकि अनकंडीशनल लव की बात की, बुद्धि की एब्सोल्यूट ट्रुथ की बात की, तो इसलिए आई थॉट कि भाई ये वैराग्य का जो वर्ड कहाँ फिट होता है वो, उसको मैं थोड़ा सा बोल सकूं। फिर से एक बार बोलना जरा भाई, वैराग का। ओके, वैराग्य को हम लोग ऐसे ट्रांसलेट करते हैं ना, जैसे डिटैचमेंट। डिटैचमेंट का मतलब होता है कि मैं किसी चीज से अटैच, अटैच नहीं हूँ। कहते तो यही है कि मैं किसी चीज से अटैच नहीं हूँ, मतलब डिटैचमेंट का मतलब है कि कोई चीज मुझे अफेक्ट नहीं करती, Material, yeah, yes. nothing affects me, I am detached. But that does not take you towards the fundamental nature of the mind, which is unconditional love. This is oneness. Can you say that you are detached from your finger? You cannot be. If it is all oneness, how will you be detached? So you cannot start your journey by saying Vairagya means detachment. You have to start your journey by saying Vairagya means without attachment. But I love you. I love you unconditionally. I am not attached to you. It is not conditional. But I love you unconditional. So इसलिए वो पार्ट उसका मतलब वैराग्य को समझना चाहिए इस तरह से। वैसे अगर इन दो वर्ड्स को देखें तो मुझे लगता है कि अटैचमेंट इज अ फर्स्ट टाइम थिंग, गेटिंग अटैच्ड विद समथिंग, बट डिटैचमेंट इज आफ्टर अटैचमेंट, means you were attached with something, that's why you got detached. मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप जिस भाव को बता रहे हैं। हाँ, मतलब I think मकरंद ये कह रहा है उनसे कि before you reach in normal way, everybody is attached to something, right? डिटैच तो तभी होगा जब वो जुड़ा हुआ था किसी चीज से। कोई चीज हटती तभी है जब आप उससे जुड़े हुए हो, और जब जुड़े हुए ही नहीं है फिर डिटैचमेंट की बात कहाँ से आती है? तो डिटैच का कोई मतलब नहीं। तो फिर स्पिरिचुअलिटी के अंदर डिटैचमेंट का तो कोई मीनिंग नहीं रह गया ना। स्पिरिचुअलिटी मीन्स वननेस, राइट। अध्यात्म का मतलब ही वननेस है, अद्वैत। वननेस इज द ओनली थिंग जो कि आपको अनकंडीशनल लव की तरफ ले जाती है। सही है। तो इसलिए जस्ट ए पॉइंट, मतलब जस्ट टू वर्ड एक्सप्लेन भाव जो है उसके पीछे भाव क्या है, वो जस्ट वो दैट्स व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन दैट। ठीक है, गॉट इट। हमें 42 भी हमें लगता है कवर कर लिया है। It's providing the relative importance of senses, mind, intellect and atma. हाँ हाँ Right. बिल्कुल बिल्कुल वो कवर कर लिया हमने। तो 43 पे आते हैं, which is the last verse. एवं बुद्धि परम बुद्धत्वा सस्तम यात्मना न आत्मना जही शत्रु महाबाहो। अर्जुन के लिए कह रहे हैं काम रूपम दुरासदम। Knowing this, which is superior to the intellect, studying yourself with the self, O Arjuna, destroying this enemy is the focus of this, is the form of desire, which must be overcome. Having discovered your true nature, you are already
then जो आप वो कह रहे हैं ना oneness के लिए, if you have reached to the after the purity of mind, you have realized your true self. That means you have become one with the Brahman. Anyway, मतलब it also indicates to you what is the meaning of a higher self. हम higher self किसे कहते हैं? It's the same self, right? It has matured. इतना उसका वो मेच्योरिटी हो गई है कि वो उस लेवल पर चला गया है जहां पर आपको मन जो है वो परेशान नहीं करता, बुद्धि आपकी प्रॉपर जगह पर बैठी है, फंडामेंटल जो उसके जो गुण हैं बुद्धि की और मन के, आप वहां तक जाने हैं, उसके पास पहुंच रहे हैं. दैट इज द हायर सेल्फ. तो उस लेवल से आप जब इस लोअर सेल्फ का मतलब है जो मन से और कामनाओं से जो अफेक्टेड है, तो उस लोअर सेल्फ को आप उस हायर सेल्फ के साथ में कंट्रोल करें. तो एक कहावत होती है कि देयर इज ए प्लेस इन योर हार्ट which is full of peace and love. Live your life from there. We all have it, no? That higher self is there in us. But in इस गेम में, जो इंद्रियों का गेम है, जो मन का गेम है, इसमें हम लोग लोअर सेल्फ की तरह बिहेव करना शुरू हो जाते हैं. Which is कि sometimes you need to withdraw, go back to that higher self. उससे तुम इस lower self को कंट्रोल करो, उसको नियम में लाओ, उसको अपने कंट्रोल में लाओ. या प्रभात, मैं थोड़ा नोट्स लेने लगा था. बट इसमें थोड़ा सा इसमें जो एक विरोधाभास आ जाता है वो ये है कि when you are running your life from that place of peace and love, basically you become defenseless against external onslaughts. External forces, which is yes and no. हाँ, वही Yes and no. विरोधाभास कह रहा हूँ मैं, मतलब हाँ, वो इसीलिए विरोधाभास है. yes and no. हाँ. इसी जब आपकी अवेयरनेस है कि ये संसार में इस तरह की चीजें चल रही हैं जिसमें आपके ऊपर अटैक भी होने वाला है, जिससे आप डिफेंसलेस हो सकते हैं, तो आप उसके अगेंस्ट एक्शन लेते हैं, बट आप अंदर से शांत रहते हैं. तो एक वो कहानी पुरानी आपने सुनी होगी कि एक गांव था, उसके बाहर एक सांप था, दरवाजे के ऊपर ही था उसको, फूफू वाली. वो गांव वाले बोलते थे कि भाई हमें परेशान करता है, तो उन्होंने गुरु से बोला, गुरु ने उससे सांप को बोला कि भाई तू ये लोगों को काटना बंद कर दे. तो सांप ने कहा अच्छा जी. थोड़ा टाइम हुआ, गुरु वहां पे वापस आए, तो उन्होंने देखा तो सांप तो अधमरा पड़ा था. उन्होंने सांप से पूछा कि भाई क्या हुआ, तो बोला मैंने काटना बंद किया और इन्होंने पत्थर से मुझे मारना शुरू कर दिया. तो गुरु ने बोला भाई तुझे काटने को तो मना किया था, फुफकारने के लिए तो मना नहीं किया. जो लोग डरे. फुफकारो तो सही ना, कम से कम अपने को बचा के तो रखो. सो वो मतलब वही बात कर रहे हैं कि अगर हम उस जगह पे चले थे, कई बार डिफेंसलेस हो जाते हैं, तो वो कहते नहीं, इट्स नॉट ए क्वेश्चन ऑफ बीइंग डिफेंसलेस एट दैट पॉइंट. ऑफ कोर्स वो दलाई लामा वाली बात हम नहीं कर रहे हैं कि वो चाइनीज आके उसको मारते हैं, वो कहता है कि भाई मैं फिर भी शांति शांति प्रेम प्रेम, बट यू कैन स्टिल लिव. क्या समझते हैं आप कि जो भगवान कृष्ण जो इस सारी की सारी उसमें महाभारत में जो कर रहे हैं, इतने एक्शन उनके हो रहे हैं, मार काट युद्ध, सारा जीवन उनका युद्ध में है, क्या वो अंदर से शांत नहीं है? किसी भी वक्त उन्हें क्या अशांत तरीके से आपने देखा? सो मतलब इट इज पॉसिबल. विरोधाभास तो है इसमें, क्योंकि लगता है कि ऐसे हो जाएगा, बट वो मेच्योरिटी भी आवश्यक हो जाती है उसके लिए, वो फुफकारना जरूरी है. So yes, you are right, but at the same time, मतलब it depends.
how deep in the rabbit hole are we going? After all, कृष्ण के पैर में भी तीर मार दिया था ना किसी ने. बट एक्चुअली वो स्टेज आ जाती है एक ऐसी जिसके अंदर आप इनसे बियॉन्ड हो जाते हैं. इट रियली कम्स टू दैट पॉइंट. तो या इट्स अ यहाँ पर बिट एक फार. हाँ जी. एक ये बात जो है इसको how do we comprehend that, how do we understand in the context of battlefield, which we all face in our day-to-day life as well, right? We are always trying to solve problems. In the context of the battlefield, should we understand that while Arjuna is fighting a fierce battle, right? Mighty as a mighty warrior, he can be very calm and quiet within himself. Is that what we are trying to say? That's what Bhagavan is saying. Vigat Jwar, without fever, without excitement, fight. Fight without excitement. बोला था ना अभी कुछ श्लोक पहले, युद्धस्त विगत ज्वर, कुछ इस तरह के वर्ड्स हैं उसमें. कि understand it, this is what is happening, this is your nature, this is your swadharma, understand all of it, this is the gyan behind it, and then go and do it. Perform your dharma. Yeah. So obviously वो stage is not easy to come. I'm not saying कि भाई वो क्योंकि हमने पढ़ लिया तो हम हो गए. It's not easy to come, but at least we understand what is that stage, and it's not difficult because we all know it also in our heart. We know it. ये बात अलग है क्योंकि अभी हमारे चित्त के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमको डराती हैं, हमें वो फियरफुल कर देती हैं. तो हमें लगता है कि ये लॉस हो जाएगा हमारा, या कोई हमें धोखा दे जाएगा या समथिंग. तो वो सारे चित्त में हैं अभी, तो वो ऑब्वियसली हमको परेशान करते हैं. बट एटलीस्ट वी नो कि इवेंचुअली बियॉन्ड दैट impression in the chit, beyond this vasana in the chit, there is peace. Spirituality, which is your true nature, no? Yeah, spirituality is वो it's not going to be वो मटके में हाथ रख के चने पकड़ के बैठे रहे और सोचे कि फ्री हो जाएंगे. वो बंदर का है ना, वो मंकी को पकड़ने के लिए छोटे गले वाला मटका जमीन में गाड़ दिया और चने डाल दिए उसमें, और उसमें हाथ डाला, उसमें चने पकड़ लिया, मुट्ठी बंद है, बाहर नहीं निकलता हाथ. तो इट्स नॉट गोइंग टू बी कि भाई हम लोग ये संसार को तो मुट्ठी की तरह पकड़े रहें और उधर से कहेंगे हम फ्री हो जाएं, बिल्कुल मोक्ष में चले जाएं. ऐसा नहीं होगा. बट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि किस वक्त हमें चने पकड़ने हैं और किस वक्त छोड़ के बाहर निकलना. दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड. अदरवाइज तो भगवान सीधा बोल देते हैं भैया युद्ध उद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे तो बेकार की बातें हैं, संसार है, माया है, जाओ अपने अपने घर. जो होता है उन्हें. तो ऐसा नहीं बोल रहे ना. क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि उन्हें मालूम है संसार का जो नियम है, अब हम लोग संसार में ही हैं, तो हमें ये नियम करने हैं, इसका पालन करना है. बट इसके पीछे जो ज्ञान है वो समझ के पालन करना है, तो हमारा जीवन जो है वो थोड़ा सा बेटर हो जाएगा, थोड़ा पीसफुल हो जाएगा, थोड़ा एंजॉयबल हो जाएगा. And hopefully one day we will be able to वो चने को छोड़ सकेंगे. If spirituality. This is the beauty of spirituality. This is a maturity of the mind, and then it goes to the maturity of the spirit, soul की maturity. Yep. चले फिर वो आप जो अंत में कहते हैं, अब ये चैप्टर 3 खत्म हो गया. हाँ, तो वो बोले आप ओम तत्सदिति
वो जो मुझे तो पढ़े याद नहीं था, आप ही को बोलना पड़ेगा। वो मैं अपना ढूंढूंगा ना कहाँ है। आपकी उसमें किताब में नहीं है? नहीं, इसमें नहीं है। मैं पढ़ लेता हूँ। वो स्वामी जी खुद ही पढ़ते हैं ना इसमें, लेकिन वो इसमें लिखते नहीं है अपने चैप्टर में। तो मुझे भी ढूंढना पड़ेगा। उपनिषद सूक्त थोड़ा बहुत याद है, उसके वर्ड्स इन बिटवीन। मैं पढ़ देता हूँ रुको। पढ़ो पढ़ो। दिवाकर भाई पढ़ रहे हैं? उपनिषत्सु नहीं मैं बोला मकरंद पढ़ रहा है, मकरंद ने बोला था ना। योग मैं देख रहा हूँ। शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे कर्म योगो नाम तृतीयो अध्याय। हाँ, संपूर्णम। इति बोलते हैं ना, ओम तत्सत इति। इति का मतलब होता है ये संपूर्ण। चौथे अध्याय का पहला श्लोक पढ़ लेते हैं, फिर हम आज का करेंगे। तो वो तो नहीं करना अभी। मेडिटेशन वाला करने का सोचा था ना कि हाँ, चौथे कि तीसरा अध्याय से खत्म पहले। करके हाँ, मगर वो आज अगली खत्म बार हुआ है करेंगे ना, ना। वो अगली बार मेडिटेशन का ज्यादा बोल रहे हैं, आधा घंटा पौना घंटा लगेगा उसमें। तो अभी तो पहला वाला पढ़ लेते हैं। अच्छा, पहला श्लोक वैसे पढ़ लें हाँ क्योंकि नहीं पढ़ता हूँ। भगवान चैप्टर 4 का श्री भगवान उवाचा इमं विवस्वस्ते योगम प्रोक्तवान हम वयम विवासुना मानेन प्रातः मनुरिक्षवाक अब्रीवित। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट वो भगवान बेसिकली ये कह रहे हैं कि ये ज्ञान मैं पहले दे चुका हूँ। सबसे पहले मैंने सन को दिया था एज ए गॉड, फिर सन से ये मनु के पास आया, फिर मनु ने जो है इक्ष्वाकु वंश के जिसके राजा राम हुए उनको दिया। And so thus these teachings can be traced back to Ishvara all the way. That ultimately he's See saying the- I started this. सी द सीक्वेंस देखिए आप उसकी। पहले किसको दिया? पहले सन, फिर उसके बाद सन के बाद मनु, मनु के बाद इक्ष्वाकु। अब नेक्स्ट टाइम सीक्वेंस सोच के आइएगा कि सीक्वेंस का क्या मतलब है। नहीं मतलब मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि अल्टीमेटली द सोर्स ऑफ द नॉलेज इज भगवान हिमसेल्फ। Everything course, can I be mean- traced back to Bhagwan. No, that Which is is true. That is true, of course. I mean, there is no question about that. But how जो इसको जो नॉलेज है, जो प्योरिटी है, जो सन से प्योरिटी से प्योर नॉलेज, उसके बाद मनु ने उसको सामाजिक उसमें कन्वर्ट किया। समाज में ले आए। उस नॉलेज को उसने सामाजिक उसमें कन्वर्ट किया, तो उस नॉलेज जो थी वो डाइल्यूट हो गई। जब सामाजिक बनाएंगे तो डाइल्यूट हो गई। फिर वो जो इक्ष्वाकु हैं उन्होंने वो समाज के साथ में फिर वो संसार के अंदर अपने कंट्री के अंदर जिसको राज्य के अंदर ले जाते, सेजेस के पास आया, फिर वो राज्य के अंदर ले गए, फिर उसमें और डाइल्यूशन हुआ। But this is the way is basically explaining to you कि सीक्वेंस कैसे है ये। और यही सीक्वेंस आज हम लोगों ने भी डिस्कशन में की है कि कैसे सामाजिक स्वधर्म, फिर कैसे जो व्यक्तिगत स्वधर्म है, और कैसे फिर उसके आत्मिक है। इट्स द सेम सीक्वेंस है, अदर वे अराउंड। हाँ, अब ये दूसरी तरफ से ले जा वो रहे बता रहे हैं कि इस तरह से ऐसे आई। इट्स ब्यूटीफुल है ना मकरंद, क्या बढ़िया है। इसीलिए इसको इसका जो चैप्टर का टाइटल है वो कर्म ज्ञान कर्म संन्यास योग, चैप्टर 4 का जो टाइटल है। तो नेक्स्ट टाइम का फिर ऐसे करेंगे ना, नेक्स्ट टाइम में हम शुरू में थोड़ा मेडिटेशन करेंगे, बाद में करें? नहीं, पहले ही कर लें, फिर जब गीता एक बार शुरू है फिर गीता में ही बहें। चलो ठीक है, नेक्स्ट टाइम का ये कोशिश रखते हैं कि सारा चाहे मेडिटेशन सारा ही, हाँ सारा मेडिटेशन कर सारा लो। सेशन मेडिटेशन के हाँ। बारे में और मेडिटेशन करें। नहीं, मेडिटेशन में एक मेरे क्वेश्चन अभी भी हैं। जैसे मैं तो एक नंबर दे रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। जब शुरू किया था मुझे 10 साल हो गए,
तो मैंने 2 मिनट से शुरू किया था अभी 25 और 30 के बीच में हूँ, हाँ, लेकिन अभी भी जैसे 39 टाइम्स जो है दिमाग बाहर जाता था ना, मन का जो प्रवृत्ति है वो बाहर ले जाती है, तो कंसंट्रेट नहीं होने देती है। हाँ। तो अभी भी लेकिन वो 3-4 टाइम्स होता है। तो 39 से 39 तो मैंने ऐसे ही बोल दिया नंबर, ये probably तो 40 महारत था। ही हो तुम मेडिटेशन के, फिर बताना इसके बारे में नेक्स्ट। हाँ, क्योंकि वो एक क्वेश्चन अभी भी रहता है दिमाग में कि भाई व्हेन आई एम गोइंग टू रीच टू द स्टेज व्हेन देयर इज नो डाइवर्जन। हालांकि मेरा स्थान भी वही है अब, तो जैसे तो एक ही स्थान पे एक ही टाइम में, मोर और लेस एक ही टाइम में, मॉर्निंग के टाइम में होता है। नेक्स्ट टाइम में कुछ ऐसी बातें भी करेंगे जिससे कि थोड़ा और क्लैरिटी इसमें आ जाएगी। हाँ, और मेरे जो है, मेरा जो मेडिटेशन इज बेस्ड ऑन मंत्रस। हाँ। 3-4 मंत्रस हैं, उसमें बीच में मैं बस फ्लक्चुएट करता हूँ डिपेंडिंग ऑन द टाइम। मुझे मेडिटेशन का कितना टाइम है, 20 मिनट है कि 10 मिनट है, 25 मिनट है, तो मैं अपने मंत्र बदल देता हूँ। जैसे लॉन्ग मंत्रस हैं तो उसमें ऑटोमेटिकली लॉन्ग मंत्रस में एक फायदा ये होता है कि मन ऑटोमेटिकली भागता नहीं है, क्योंकि अगर फोकस ऑन लॉन्ग, जैसे नहीं है वो गायत्री मंत्र पे कभी कभी करता हूँ मैं, तो वो लंबा है ना, ओम भूर्भुवः स्वः, तो उसमें ऑटोमेटिक मन जो है भागता नहीं है। पर एक जिज्ञासा है ये कि भैया कब वो जीरो पे कब पहुंचेंगे। अभी पहले सीखते हैं, आप तो बहुत आगे बढ़ गए हैं, थोड़ा पहले सीखते हैं फिर शेयर हाँ करेंगे। हाँ, नहीं मैं चुप रहूंगा, मैं चुप रहूंगा। नहीं नहीं, चुप रहने की क्या आप बात है बहुत आगे भाई, पहुंच चुके हैं। हम सब सीखेंगे आपसे, इसमें क्या बात है। क्या है? लेकिन एक चीज मैं कहूंगा अपने एक्सपीरियंस पे कि बहुत आनंदमयी है ये। When you meditate, you really feel क्या बोलते हैं, ब्लिस जो होता है ना, वो कहीं ना कहीं आता है वो। एंड द वे आई हैव यूज्ड इट इन माय प्रोफेशनल लाइफ इज इट कीप्स मी energized throughout the day, क्योंकि वर्क इज फुल ऑफ क्रैप, वेरी लूजली सेइंग, उसमें चलिए जो है ज्यादातर क्रैप ही होता है। मैं रिकॉर्डिंग को रोक देता हूँ अभी। हाँ